If you are preparing for RBI Grade B, government schemes would definitely be on your hit list. बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. और गवर्नमेंट स्कीम्स को if you try to read, you will find them very easy. But the problem comes when there are a lot of government schemes and you have to read each one of it and you have to retain each one of it, then it becomes a problem. और प्रॉब्लम ज्यादा की नहीं है, प्रॉब्लम एक्चुअली है दैट यू आर नॉट एबल टू फिल्टर आउट द इरेलेवेंट एंड फोकस ऑन द रेलेवेंट कंटेंट. सो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो. एज इन रीड ओनली दीज गवर्नमेंट स्कीम्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू. उसके बाहर कुछ नहीं आएगा. सो लिसन टू मी केयरफुली एंड बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. यू विल गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी. Before I start, please subscribe to our YouTube channel and please subscribe to our Telegram channel, the link for which is given in the description of this video. अब गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. विच स्कीम्स टू कवर, व्हाट आर द सोर्सेज, व्हाट टू रीड इन अ स्कीम. बट इन दिस वीडियो आई एम स्पेसिफिकली गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन विच स्कीम्स टू कवर. मैं सोर्सेज और स्कीम्स में क्या पढ़ना है उसके बारे में नहीं बात करूंगा. विच स्कीम्स टू कवर इज सोनली आवर एजेंडा, बिकॉज अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो आपकी 60-70% दुविधा स्कीम्स को लेकर खत्म हो जाएगी. अब स्कीम्स कौन सी पढ़नी है? सो आई हैव अ 3 पॉइंट फिल्टरेशन फॉर्मूला जिससे यू कैन इजीली डिसाइड दैट विच स्कीम्स आर रिलेवेंट फॉर यू. ड्यूरेशन, कितने महीने की पढ़नी है, नई पढ़नी है या पुरानी पढ़नी है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज और एरियाज वेयर यू नीड टू फोकस अपॉन. और मैं जो भी बताने वाला हूं, दिस इज बेसिकली बेस्ड अपॉन द एंटायर एनालिसिस दैट आई हैव डन फॉर स्कीम्स दैट वर आस्क्ड इन 2021. ये सारी स्कीम्स का एनालिसिस किया है. जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, किस मिनिस्ट्री से पूछे गए हैं, फ्रॉम 2021 टिल 2017, ये पूरा एनालिसिस किया है. तो ऑल दिस एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन डेटा एंड फैक्ट्स. ठीक है, तो अब मैं आपको मेरी जो फाइंडिंग्स हैं वो बताऊंगा. सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेशन की. Now, many people will tell you read schemes for 6 months. Many people will tell you read schemes for 1 year. See, I have a very simple funda. आपको 9 months पे फोकस करना है. 6 months is anyways not going to be sufficient. Perfectionist situation है, that is 1 year. But if you analyze the number of schemes that are asked from say 10th, 11th and 12th month, वो बहुत कम है. So it's more appropriate that we concentrate on 9 months and instead use our time which we would have wasted on reading schemes for 10th, 11th and 12th month on revising these schemes which we are reading for the 9 months. रिवीजन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना इन स्कीम्स को पढ़ना. सो 9 महीने इज मोर देन एनफ. डू नॉट एवर थिंक दैट आई विल गो फॉर 12 months or 2 years. No, 9 months is what is the final figure. Note this down. Note this down and follow this. Trust me. You have to trust me. You have to trust your mentor. It will definitely help you save a lot of time. नाउ ओल्ड और न्यू, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि शुड आई रीड ओनली स्कीम्स विच आर लॉन्च्ड इन 9 months. बट एग्जाम में तो पुरानी स्कीम्स भी पूछी जाती हैं, 2015 की, 2019 की. सो गाइस, द आंसर इज व्हेन आई से ड्यूरेशन ऑफ past 9 months, I am not telling you that the schemes launched in that 9 months. I am telling you any scheme in media in those 9 months. It is very important to understand what do I mean by any scheme in media, any scheme in news. Whether that scheme was launched in 2010 or 2015 or 2020 or 2018, but if that scheme is in media for any of the reason in the last 9 months, that becomes important for you. Suppose a scheme was launched in 2015, but PM Narendra Modi praises that scheme on his Independence Day speech. That scheme becomes a part of media. That is important for you. Suppose any scheme was launched in 2010, but there is a question in parliament during a question hour on the efficacy of that scheme, then that scheme becomes a scheme in media. So that is important for your exam. So please try to understand the duration which I'm saying is for 9 months is not with respect to launch of new schemes. Rather, any scheme in those 9 months which is in media, which is in news, irrespective of whether it is old or new, will be important for you. I'll give you some examples. Now, if you see in 2021 exam, there were 5 questions on Amrut scheme. This was launched in 2015, so why the hell did they ask questions from it in 2021? The answer is, if you go to this link on PIB, right? This link on PIB. Now, your exam was in March, and on 11th February 2021, there is a news on this Amrut scheme on PIB. This means this scheme is in news just 1 month before your exam, and therefore the question was asked from this in your exam. क्या question आए थे, कैसे question आते हैं, that I'll discuss in the next lecture. Right now, just focus on what schemes to read.
ठीक है. So another example is, now there were three questions on PM Kisan which was launched in 2019, but questions were asked from it in 2021. Why? The answer is why. Again, the answer is that this scheme was in media. Now, this is on 25th December 2020, just 3 months before your exam. There was a news related to PM Kisan scheme on PIB, Press Information Bureau. So again, this was in media, this was in news, there were some updates on this scheme. Therefore, this scheme was asked in your exam. So I'm just giving you some examples, though every scheme is following the same pattern that is being asked in your exam. So I hope you are getting a lot of clarity what I'm saying. 9 मंथ्स की जो ड्यूरेशन है वो न्यू या ओल्ड के लिए नहीं है. एनी स्कीम विच इज इन मीडिया, चाहे 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है या 1 साल पुरानी है, इफ इट इज इन मीडिया, इफ इट इज इन न्यूज इन द लास्ट 9 मंथ्स, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज. अब ओल्ड और न्यू भी जो मीडिया में स्कीम्स हैं बहुत सारी हैं, हजारों हैं. हाउ टू फिल्टर आउट? सो फॉर दैट हमें कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को टारगेट करना है दैट वी फील हैव बीन आस्क्ड इन एग्जाम अगेन एंड अगेन और आर रिलेटेड टू योर सिलेबस. तो अगर हम सिलेबस को देखें, ये सिलेबस आपके सामने है. इस सिलेबस से अगर हम मिनिस्ट्रीज मैप करने की कोशिश करें, देखिए हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. देन सोशल जस्टिस है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. अर्बनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट यहाँ आ जाता है. देन जेंडर इश्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट आ जाता है. देन इफ वी स्टार्ट गोइंग बैकवर्ड्स, ग्लोबलाइजेशन से तो आई कुड ओनली फाइंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. Then here there is Indian agriculture, right? Then Ministry of Agriculture and Farmers Welfare is very important. Then Sustainable Development and Environmental Issues, तो उससे related Ministry of Environment, Forest and Climate Change is there. ठीक है. Employment is also a topic, so Ministry of Labor and Employment is also there, which can map to your syllabus. तो अगर syllabus से map करें, these are the ministries which are probable, the schemes from these ministries are probable to be asked in the exam. अगर इस ministries में से भी मैं कुछ important ministries आपको बताऊं, वो 4 हैं जो कि येलो में हाईलाइट की गई हैं. हेल्थ, एजुकेशन, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं किसी भी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए और वही इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. बट हेयर देयर इज अ ट्विस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज मिनिस्ट्रीज जो मैंने अभी आपको दिखाई विच मैप्स टू योर सिलेबस, देयर आर अदर मिनिस्ट्रीज आल्सो फ्रॉम विच क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड कंसिस्टेंटली. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इनमें से क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं? Though they are not directly relating to your syllabus, the answer is now there are some topics in your syllabus like human development, social justice, discrimination. ठीक है. तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे हाउसिंग, वाटर, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, रूरल डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं ये ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस से रिलेटेड है. मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का भी एम यही है कि लोगों को स्किल दी जाए, उनको एम्प्लॉयबल बनाया जाए. तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है या डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है. वाटर, फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी से रिलेटेड है जो आपका टॉपिक है. सो ये सारी मिनिस्ट्रीज दो दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर सिलेबस बट इनडायरेक्टली ये उन्हीं एरियाज में काम कर रही हैं जो कि आपके सिलेबस में है. तो ये मिनिस्ट्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से आए हैं. देन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से आए हैं. तो ऐसे जैसा मैंने आपको बताया, दीज इनडायरेक्टली रिलेटेड मिनिस्ट्रीज टू योर सिलेबस आर इक्वली इंपॉर्टेंट. इनको मत छोड़ें. तो ये मिनिस्ट्रीज हो गई आपकी और ये हो गई. दिस इज द फाइनल लिस्ट. आपको इसके बाहर एक भी मिनिस्ट्री की स्कीम पढ़ने की जरूरत नहीं है. एग्जाम में अगर एक दो क्वेश्चन आ भी गए, डोंट वरी, you need not be perfectionist. Your aim is not to score 100. Your aim is to just score 60, 65, which is enough if we talk about TSI. Right. So I hope this video will give you a good guiding light as in how to approach schemes ताकि आप filter कर पाए which ones are important and which ones are not important. Because if that problem gets resolved, I'm sure that you will have enough time to understand all these schemes, retain them, ratta maring them, and coming out with flying colors by solving all the questions in the exam.
थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, आई होप दिस विल गिव यू अ गुड क्लैरिटी। और अगले वीडियो में मैं लाऊंगा व्हाट टू रीड इन अ स्कीम। जब भी आप स्कीम पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।